जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन। रंजन यमुना तेरा वनचारी। यमुनतीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय शिल कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद जय शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय जय, श्रीला श्रीपाद गुरु महाराज की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवता उत्तमश्लोक भगवता उत्तमश्लोका भक्तिर्भवति नैष्टिक्यम् भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रीमद्भागवतम 16 to 12 chapter श्लोक नंबर 11 पुरुष प्रकृति व्यक्तम् पुरुषा प्रकृतिर्व्यक्तम् आत्मभूतम् इन्द्रियाश्रयः आत्मभूतान्द्रियाश्रय शुक्लवन्तम् असि सर्गदो शुक्नुवन्तस्य सर्गदौ न विनं जतानुग्रहात् न विना यदनुग्रहात् श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद Purusha, the generator of the total material energy, Prakruti, the material energy of material natures, Vyaktam, the principle of manifestation, Mahat Tattva, Atma, the false ego, Bhuta, the five material elements, Indriya, the 10 sense, Asraya, the mind, intelligence, and consciousness. Shukvanti are able. Asa of Asa the mind and Asa of the this inverse. Sargado in the creation it's no not Veena without Yat of whom Anugrahat the mercy. Translation by Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The three Purusha, Karandarsai Vishnu, Karvadarsai Vishnu, and Kiradarsai Vishnu. The material natures, the total material energy, the false ego, the five material elements, the material sense, the mind, the intelligence, and consciousness cannot create the material manifestation without the direction of the Supreme Personality of Godhead. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Prabhupada as confirmed in the Vishnu Puran, Parasya Brahmana Saktyastatu Adam Matlam Jagat. Whatever manifestations we experience are nothing but various energies of the Supreme Personality of Godhead. Those energy cannot trade with anything independently. This is also confirmed by the Lord himself in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita 9:10. Madhyam Mahimanam cha Param Brahmati Sabditam Chetasya Asya Anugrihyatam में संपूर्ण विवृतम होती. The
Lord Bhagavad Gita 9:10 Madhurjam Prakriti Siddham Characharam. This material nature is working under my direction. O son of Kunti, and it is the proud seeing all moving and unmoving living beings. Only waters the direction of the Lord's, the Supreme Person, Prakriti, which is manifested in 20 force elements, create different situation for the living entity. In the Vedas, the Lord say, Madhyam Mahimanam Cham Param Brahmati Sabdatam Chetasya Anugrishatam. मैं संपूर्ण अभिविधि. Since everything is a manifestation of my energy, I am known as Param Brahma. Therefore, everyone should hear from me about my glorious activity. The Lords also say is Bhagavatam Gita 10:2. Aham Adihi Devanam. I am the origin of all the demigods. Therefore, the Supreme Personality of Godhead is the origin of everything, and no one is independent of him. Srila Madhvacharya also says, Anisha Jivam Rupanam. The living entity is Anisha, never the controller, but is also controller. Therefore, when a living entity becomes proud of being an independent Ishvara or God, that is his foolishness. Such as foolishness is described in the following verse. Om Jnana Timrandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumritam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Jena Bhutale Shang Rupam Kadamiham Dadati Sambadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Jitapadakamam Sri Guru Vaishnavancam Sri Rupam Sagrajatam Sarganam Raghunanitam Tam Sajivam Aditam Savaditam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Dhamam Sri Radha Krishna Padanam Sarganam Sri Sakanitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopese Gopikanta Radhaganta Namastate Tapta Kanchana Gourange Radhe Vrindavaneshwari Kusumanusute Devi Pranamami Haripi Vancha Kalpatarvesya Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Aditya Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Jai Shri Prabhupada, Jai Shri Gurudev. Purushah Prakriti Vyaktam Atma Bhuto Indriya Asraham Shakruvanta Assa Sargadu No Binam Jat Anugrihat. तो हम लोग जो वृतासुर के ये अध्याय में वृतासुर का जो उनका मृत्यु के जो महिमा किस तरह से उनका मृत्यु हुए वह शरीर त्याग के इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये थोड़ा हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। तो जो जब वृतासुर भगवान की भक्त थे तो और बहुत बलवान थे, तो भगवान की भक्त होने के कारण
तो इतना शक्तिशाली थे कि उनका वध करने के लिए इंद्रदेव को बहुत डिफिकल्ट हुआ था। तो कम से कम 1 साल लग गए। तो भूतासुर भक्त होने के इंद्रदेव की भी इच्छा नहीं था, उनका अनिच्छा शक्ति उनको वध करने के लिए जो इच्छा व्यक्त की गई, इसी अध्याय में बताया गया है। तो जब इंद्रदेव इस अध्याय में ऐसा है कि इतना शक्तिशाली के कारण भी भूतासुर उनसे और ज्यादा शक्तिशाली। तो भूतासुर एक असुर था, तो असुर होने के कारण उनका शक्ति मध्य इंद्रदेव से कई अधिक था। तो ये असुर जो भयंकर था, इतना भयंकर था कि इंद्र को भी हिला दे रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र की जो युद्ध क्षेत्र में इंद्रदेव भूतासुर का एक हाथ काट दिया था। तो काटने से भी उनका जो असुर की और दूसरे हाथ इतना भयंकर युद्ध में भी उनको जो इंद्रदेव का जो ऐरावत हाथी था उसको नीचे से गदा से प्रहार किया, तो उसका जो इंद्र का जो अस्त्र था, अस्त्र शस्त्र हाथ से गिर पड़ा था। तो इसी के कारण इंद्रदेव उन्हीं का मन में शोक जात हुआ था। लेकिन यहाँ पे भूतासुर जो महान भक्त थे, तो अपने शत्रु के होने से भी उनको हत्या किए नहीं। तो ये जो यहाँ पे देखने मिल रहा है, जो असुर होने से भी वो उनको मारे नहीं। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं जी, उसका जो अंतर भगवान की जो भक्ति था, उस बिना अस्त्र शस्त्र के कारण इंद्रदेव को हत्या किए नहीं। तो यहाँ पे जो श्लोक है, जो इंद्रदेव का अस्त्र गिर गया था, तो उसी के में वो खुद तो उठा लिए थे, और उठाने के बाद कुछ जो ज्ञान प्राप्त किए थे, उसी ज्ञान की कुछ श्लोक है, जिस श्लोक में आज वर्णन किए हैं, जो भूतासुर बताए हैं। तो वो भगवान की महिमा के बारे में इस श्लोक में जो तत्व है, भगवान की प्रकाश कैसे मूल रूप की प्रकाश है, उसी प्रकाश की कुछ तत्व यहाँ पे बता रहे हैं। पुरुषः प्रकृति व्यक्तम, जो पुरुष अर्थ ऐसे है कि जितना भौतिक जगत है और जड़ जगत है, उसी का जनक है, उसी का उत्स है, वही पुरुष है। जैसे हम भौतिक जगत में हम लोग है, हम पुरुष और स्त्री, ऐसे नहीं है कि हम भी पुरुष है। लेकिन यहाँ पे जो पुरुष बताया गया है, इस जगत में एक ही पुरुष है जो भगवान है, ये सबका उत्स है। और स्त्री कौन है? एक प्रकृति, जिस रूप से ये जड़ जगत को सृष्टि की है। तो पुरुष जो है, पुरुष प्रकृतिम अव्यक्तम, जो यहाँ पे पुरुष मीन्स ये है भगवान कृष्ण, और जो प्रकृति है वो जड़ प्रकृति है,
भौतिक की प्रकृति है, जो उन्हीं का इक्षण से वो सृष्टि करते हैं। तो ये तत्व बता रहे हैं। पुरुष प्रकृति व्यक्तम आत्मभूत इंद्रियाश्रय, जो जड़ प्रकृति में अव्यक्त मूल जो कारण है महत्त्व है। कैसे? यहाँ पे इंद्रिय लोक का जो हमारा इंद्रिय है, आत्म भूत इंद्रिय, आत्मा अर्थात जो अहंकार है, फॉल्स ईगो है, इसको सृष्टि कौन के है? भगवान, और सबका सृष्टि भगवान कृष्ण है। तो हमारे जो जितना इंद्रिय है, इंद्रिय का भी वो उस है, अर्थात वो आदि है। तो यहाँ पे भूत आश्रय, भूत में पंचभूत है, जो पंचभूत है वो पंचभूत कैसे सृष्टि हुए बता रहे हैं। तो इसमें भगवद गीता में भी बताया है कि श्लोक नंबर 13 अध्याय की 6 नंबर श्लोक में, महाभूतानि अहंकारः बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्राणि दशकम च पंच इंद्रिय गोचर। जो महाभूत है, ये 5 महाभूत है। 5 महाभूत क्या क्या है जी? पृथ्वी में जो सृष्टि की है, शीत, आप, तेज, मरुत और व्योम अर्थात आकाश है। ये 5 महाभूत भी भगवान ने सृष्टि किए हैं। भूत इंद्रियाण आश्रय, आश्रय अर्थात इसके बाद महाभूत के बाद भी एक मन सृष्टि की है। तो ये मन जो है सूक्ष्म रूप से है, जैसे ये तीन गुणों की अव्यक्त अर्थात तो अदृश्य से रहते हैं, उन्हीं का कोई दृश्यमान नहीं होते। ये भूत प्रकृति की अव्यक्त स्तर है। अव्यक्त मीन्स उनके दृश्यमान नहीं होते, उन्हीं का स्तर है। तो इसे वृतासुर ने इंद्रदेव को वर्णन करा रहे। उसके बाद बता रहे शुक्लवंत्य अस्य सर्गदो, अस्य शुक्लदो, शुक्लवंत जो ये ब्रह्मांड की सृष्टि आदि जो होते हैं, जितना भी होते, भगवान की बिना कोई चीज सृष्टि होना असंभव है। तो यहाँ पे भूतासुर ने शिक्षा दे रहे इंद्रदेव को, शुक्लवंत सर्गदो न बीनम जत अनुग्रहतम, भगवान के बिना, भगवान के आशीर्वाद बिना कोई भी वस्तु जड़ हो और जड़ प्रकृति भी, किसी भी वस्तु पृथ्वी में जो कुछ भी बना हुआ है, भगवान की अनुमति बिना, भगवान की इच्छा बिना कोई चीज भी बन नहीं सकते। तो ऐसे जो फिर 24 तत्व है, जैसे 5 कर्म इंद्रिय, 5 हस्तपाद पाक उपस्थ वायु, 5 इंद्रियों को भी भगवान ने सृष्टि की है। तो इसके
जो इंद्रिय है, इंद्रिय के ऊपर में मन है, या ये जो मन है वो मन शरीर की अंतर्देश में रहता है, तो इसको अंतर्देशीय इंद्रिय बोला जाता है। जो मन की सहित एक और 11 इंद्रिय रहते हैं, जैसे कि 5 इंद्रिय है। ये 5 इंद्रिय जो है भोग्य वस्तु में रहते हैं, भोग करने के लिए शरीर की। ये 5 इंद्रिय है शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध। ये 5 वस्तु हर समय हमारा उपभोग करने के लिए इच्छा प्रकाश करते, जो कि हमको भोग करने का मन आता है। जैसे शब्द होता है कि कोई कानों में श्रवण करने के लिए, जो धर लीजिए, सबसे अच्छा हमको लगता है कि भौतिक संसार की जो कुछ भी है श्रवण करने के लिए, लेकिन जो आत्मानुभूति व्यक्ति है वो कभी भी सांसारिक जो चीज है उसको श्रवण करने को मन नहीं लगेगा। लेकिन जो भगवान की भक्त है यहाँ पे जो शब्द की आस्वादन करता है, जैसे हरिनाम होते हैं, महा भगवान की हरिनाम अमृतम, उसको आस्वादन करता है। इस तरह इसी भोग विलास का जो है उसमें पांचों में भोग ही करते हैं। रस आस्वादन, रस जैसे जिह्वा के होते हैं, जिह्वा जो रस है उसमें जो स्वादिष्ट पदार्थ होते हैं उसको उपभोग करते हैं। लेकिन ये स्वादिष्ट वस्तु में एक है कि भगवान की अर्पित प्रसाद हम ग्रहण किए तो हमारा ये जो जिह्वा जो रस है इसको हम ग्रहण करने से भगवत की सेवा हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस बुद्धासुर ने जो वर्णन कर रहे, तो यहाँ पे जो पुरुष प्रकृति व्यक्तम ये, तो यहाँ जो भगवान की उत्स है, परम उत्स है, कैसे पहले पुरुष के से हो, तो यहाँ पे भगवान की जो पहले बलराम को सृष्टि करते हैं और बलराम ने 4 पुरुष अवतार जैसे पद्मिनी, वासुदेव, संकर्षण, अग्निरोध। उसके बाद महाविष्णु की सृष्टि होती है। महाविष्णु जो है कारणदर्शी विष्णु है। उसके बाद गर्भदर्शी विष्णु जो सृष्टि तत्व में भगवान ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं और सारे जीव तत्व में फिर क्षीरदास्य के विष्णु रूप से जो परमात्मा रूप से हर जीव का अंदर परमात्मा रूप से रहते हैं। तो यह मूल तत्व है जो हमारा जीव तत्व की प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे क्षीरदर्शी विष्णु ने परमात्मा रूप में रुकते हैं और कारणदर्शी विष्णु जो महाविष्णु है उनका निश्वास प्रश्वास और सारे लूमों से ये ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं। इस तरह सृष्टि तत्व है जो भगवान की अवतार की। तो जो भगवान की अवतार जहाँ पे भौतिक प्रकाश के लिए जो भगवत अवतरण करते हैं उसी को हम जो भगवान की जिस रूप से अवतरण करते उसी रूप को हम अवतार बोला जाता है। जैसे कि कोई भगवत साम्राज्य में अर्थात भगवत साम्राज्य से भगवत से अवतार ग्रहण करते हैं और इसको भौतिक सृष्टि में
अवतरण कर कर वो जिस नाम से अवतरण करते हैं उसी नाम की बोला जाता है। जैसे नरसिंह देव होते हैं, जैसे बरहा, अलग अलग अवतार से अपने अपने नाम लेकर ही ये करते। तो वेद में बताया जाता है कि एको देवो, जो भगवान है, सबका जो उत्सव है उनके बारे में बता रहा है कि एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हुत्यंते रात्मा। तो जो भगवान है ये एक पुरुष है, अलग अलग कई सारे पुरुष नहीं है, भगवान एक है। जो भगवान श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है, उन्हीं का शरीर वो अंश है। तो इसी में हम भागवतम में भी ही डिटेल्स बताया गया कि जो भगवान के दिव्य रूप से है, तो भगवान के भक्त जो होते उन्हीं के अनुसार से उन्हीं के शाश्वत रूप होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज है, उनका बहुत अंतरंग का भक्त है, तो उन्हीं को सुरक्षित करने के लिए नरसिंह देव का अवतरण किए थे। तो नरसिंह अर्थात नर और सिंह, नर अर्थात मनुष्य की शरीर है और उनका जो मस्त है सिंह की तरह। तो ये भक्त की हिसाब से वो शाश्वत शरीर लेकर जो भक्त का संबंध है वो संबंध के अनुसार अवतार करते हैं। तो भगवान भगवद गीता में भी अर्जुन को बताते हैं कि जी भगवान खुद एक ही है और कोई नहीं है। हम आत्मा गुणकेषु सर्वभूताशया स्थितः हम आदि च मध्यश्च भूता आत्मनम एव च। ये 10वां अध्याय में बताया भगवान ने कि जो ये है मैं आदि हूँ। हे अर्जुन, ये जो समस्त जीव का हृदय में आत्मा रहता है, मैं हूँ और मैं हर प्राणी का आदि हूँ और अंत भी हूँ और मध्य भी हूँ। तो ऐसे ही भगवान सारे जीव का मूल है। कोई भगवान से ऊपर नहीं है कि भगवान कृष्ण से सामंजस्य समादर्श व समान नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद विष्णु पुराण से बताते हैं कि परस्य ब्रह्मांड ब्राह्मण शक्तिस्तते अखिलम जगत। तो हम लोग जो कुछ भी अनुभव करते हैं सृष्टि में होते हैं, ये सब भगवान की शक्ति है। ये भगवान की शक्ति बिना और कुछ नहीं। प्रभुपाद उनका प्रपट में बताते हैं जितना भी शक्ति है ये भौतिक जगत में ये स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान की से संतृप्त है। तो प्रभुपाद भगवद गीता की 10वां श्लोक का भी एग्जाम्पल देते हैं। मया दीक्षिणम प्रकृति श्वेते सचराचरम। तो भगवान की जो कुछ भी जड़ प्रकृति में होता है, स्थावर जंगम कुछ भी जीव उत्पन्न होते हैं, तो भगवान खुद की इच्छण है। मया दीक्षिणम, मया मने मैं, मेरे इक्षण से ही प्रकृति की सृष्टि होता है। जितना चराचराचरम स्थावर जंगम जो भी कुछ है, तो भगवान जब इक्षण करते हैं प्रकृति को, प्रकृति स्त्री होते हैं और भगवान पुरुष होते हैं। तो इक्षण वो कोई शरीर संपर्क नहीं होता। यहाँ पे होता है इक्षण, मतलब ऐसा है कि वो जब देखते हैं ये सृष्टि करते हैं।
तो उत्पन्न होते प्रकृति की। तो यहाँ पे इक्षण प्रकृति ही, प्रकृति स्त्री होते हैं, तो भगवान जब इक्षण करते हैं, देखते हैं, तो 24 तत्व प्रकाशित करते हैं भगवान इच्छा से। प्रभुपाद और भी एग्जाम्पल दे रहे कि वेद से मदी महिमानं परम ब्रह्मति शब्दयितम् वेद चेतस्य अस्य अनुगृहीतं में संविवृतम होती। जो भगवान की सृष्टि प्रकाश जो है, जितना भी है, वो ये भगवान से ही आता है। इसलिए भगवान को परम ब्रह्म भी बताते हैं, परम ब्रह्म नाम से परिचित है। इसलिए भगवान यहाँ पे प्रभुपाद के एग्जाम्पल में बता रहे जी, भगवान खुद ही बोल रहे कि मेरे गुणगान सुनना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में जो उपदेश दिए है, इसको हम सुनना चाहिए। भागवतम और भगवद गीता जो भगवान की मुख निषिद्ध वाणी है, इसको आस्वादन करना चाहिए और उन्हीं का नाम, गुण, रूप, लीला जितना भी है, इसको हम कर्ण द्वारा श्रवण कर सकते हैं और कर्ण द्वारा भगवान को दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जड़ से चक्षु जो है, जड़ चक्षु है, ये चमड़े के चक्षु में कभी भी दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये संभव नहीं। तो हम श्रवण करने से, भगवान यहाँ खुद बताते हैं 10वां अध्याय में, ये हम आदि ही देवान, मैं हूँ, जितना देवादेवी है मैं आदि हूँ, मैं उस। तो उन्हीं का गुणगान सुनना चाहिए, उन्हीं का रूप, गुण, लीला जितना भी है, उन्हीं का ही वर्णन करना चाहिए। तो हमारा जो अंतर में जो हमारा चित है, वो चित में हमारा आवृत है। क्या आवृत है? जो जो अंतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माश्चर्य, ये सब भरपूर है। तो इसको क्लीननेस, पर इस क्लीन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की जो जितना गुण है, क्वालिटी है भगवान की, इसको वर्णन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। तब हम जो हमारा जो मन, पापो मन है, उसको बहुत क्लीन कर सकते हैं। और भी प्रभुपाद माधवाचार्य का एग्जाम्पल दिए है। श्रीला माधवाचार्य बता रहे कि अनिशं जीव रूपेण, जीव अनिश, अनिश जीव रूप, जीवन अनिश मीन्स ऐसा होता है, जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीव परमात्मा की अंश है, आत्मा जो है परमात्मा की अंश है। तो ये कभी भी उसी का जड़, ये भौतिक जगत में हम खुद को नियंत्रण करता हुआ ईश्वर बताता है, ये संभव नहीं है। ये जीव जो है, ये क्या है? भगवान की दास है। हाँ, जीव कृष्ण नित्य दास, ये भगवान कृष्ण की नित्य दास है, तो वो कभी भी भगवान नहीं हो सकते। तो इस तरह जो इस श्लोक में संपूर्ण बताया गया है, वृतासुर जो है भगवान की परम भक्त थे। भगवान की परम भक्त होने के कारण उनको ये भगवत तत्व जो है, तत्व सबको समझा रहे हैं। तो इस श्लोक के बारे में इतना बताया गया है। तो हम यहाँ से विश्राम देते
हरे कृष्ण। कोई ऐड करना चाहता है तो ऐड कर सकते हैं महाराज। नो, कोई भक्त ऐड करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इधर कैसे समझाया, सृष्टि लीला कैसे होता है वो सब। Yes, anyone is having any question, they can raise the hand and ask His Grace महाबाहु प्रभु। अगर किसी का कुछ प्रश्न है वो लोग हाथ उठा के महाबाहु प्रभु को पूछ सकता है। आज का क्लास का ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारा वेदांता साइंस सीरीज का एक किताब में था। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो किताब ले सकता है, उसका लिंक मैं चैट में भेजा था। Anyone is having any question, they can raise the hand. Yes, Prabhuji, please. दंडवत प्रभु। हरे हेलो कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि जो जीव पे 3 गुण लगता है ना, क्योंकि जैसे जीव तो चेतनावश इस मेटेरियल वर्ल्ड में है, तो कहा जाता है कि पिछले कल के क्लास में भी ये हुआ था कि जीव करता नहीं है, जीव अहंकारवश अपने आप को करता समझता है। लेकिन जीव इच्छा तो कर रहा है, इच्छा है तो इच्छाएं तो उसी की हैं, लेकिन जब बोल रहा है करता वो कोई और है, प्रकृति के गुण करता है, तो लेकिन इच्छा तो वो कर रहा है, तो अल्टीमेटली कनेक्शन तो वही है ना, उसी का ना मेन तो वही अ, मतलब मेन कॉज तो बोल सकते हैं कि इच्छा है। इच्छाएं इच्छाएं तो बहुत बड़ी चीज है, इच्छाएं कर रहा है तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की हुई ना, तो कर्ता भाव में दिक्कत क्या है? इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, कर्ता भाव में ये है कि भगवान की बिना इच्छा से कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक जो क्वालिटी है, जो गुण है भगवान की, 64 के गुण है, और 64 गुण में जीव की 50 की गुण है। 50 गुण में एक गुण है जैसे कि स्वाधीनता गुण, जो भगवान ने जीव को स्वाधीन दिए है। वो आइदर वो पाप कर्म करे, आइदर वो पुण्य कर्म करे, तो वो चाहे भगवान को भक्ति कर सकते हैं, वो चाहे भगवान को भक्ति नहीं कर सकते। तो वो स्वाधीन के गुण के अनुसार भगवान ने इसको ऑथराइज करते। जैसे ऐसे होता है कि आपका कॉलेज में आप बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर है, तो आप चूज करते कि हमको साइंस के बारे में, जियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, और कई सारे सब्जेक्ट है जिसमें आपको अच्छा लगता है, उसी को चूज करते, उसी हिसाब से आप अध्ययन करते हो, आगे बढ़ते। इस तरह भगवान ने क्या करते हैं, इसमें जो आपका स्वाधीन इंडिपेंडेंट क्वालिटी है, उसी को आपको छोड़ देते हैं जीव के ऊपर। तो जीव क्या करता है, चॉइस करता है, वो चॉइस के अनुसार वो उसको भगवान ने ऑथराइज करते हैं, और उसी के हिसाब भोग करते हैं। जैसे कर्म फल है, पाप कर्म करेगा तो उसका रिएक्शन है, वो रिएक्शन उसी को पड़े। तो इसी में भगवान की कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आपको गुण दिए है, उसी हिसाब से आप चॉइस कर रहे हैं। और आपको चाहिए अच्छी भक्ति, चाहिए भगवान को, चाहिए तो अच्छी भक्ति करना, अच्छी भक्ति से आपको भगवान को मिल जाएंगे। इस तरह है। रोशन प्रभु। यस प्रभु, जैसे ये 3 गुण तो भगवान के ही अंडर में है, तो वो 3 गुण द्वारा हाँ, ही हम सत्व रज प्रभावित तम हो रहे हैं। 3 गुण है। तो सत्य अच्छा, रज तम गुण है। जैसे कि
तम गुण है अच्छी नीचे का है। रजगुण जैसे क्रोध होते हैं, शूद्र लोग को तम गुण की प्रकाश होते हैं। जैसे शिव जी तम गुण की अवतार है। जीव कुछ छोटा कर्म करता है तो वो क्या है, तम गुण के। जैसे योद्धा होता है, उसका खून पूरा गर्म होता है, वो रजगुण के। जो सात्विक गुण है बहुत अच्छे से बात करेगा, उसका उसका कोई जैसे बिना भाव होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। हाँ, तो मैं उस प्रभु हाँ सॉरी बट तो मैं अपने गुणों का चॉइस कर सकता हूँ कि मैं किस गुण में रहना चाहता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। यही तो बात भगवान बता रहे हैं, आपको स्वाधीनता वही से आपको विनय होना चाहिए, है सहनशीलता होना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए, अपने आप को परिष्कार होना चाहिए। जैसे सत्य गुण में रहते, मंदिर के परिसर में रहते, मंदिर परिसर कैसे क्लीन होता है, और अपने मन को स्थिरता रखना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, अपने को संयम अपना कंट्रोल में रखना चाहिए अपने आप को। तो हमारा जो इंद्रिय भोग वस्तु है, इसको हम जब संयम करेंगे, इंद्रिय भोग वस्तु हमको त्याग कर सकते, वो ऑटोमेटिक हमसे चले जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती उसको त्याग करें। हाँ, क्योंकि जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, वो ऑटोमेटिक वो अपने आप रास्ता चल जाता है। तो हमको जैसे हम कुछ शरीर की मामले में देख लेते हैं, जैसे हम कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं, कुछ खाद्य ग्रहण करते हैं, तो हमको कोई फोर्स करना नहीं पड़ता है बाथरूम के लिए। अब हमको जरूरी है कि फोर्स करना है बाथरूम के लिए, नहीं, वो ऑटोमेटिक उसका नली से चला जाता है। तो हमको खाद्य जरूर है कि हमको ग्रहण करना है। इसलिए हमारा जो भगवान दिए है कई सारे गुण, बिना बाप है, सहनशीलता है, परिच्छन्नता परिष्कार रहना है, मन को स्थिर करने का, आत्मसंयम में, ये सब हमको रहना चाहिए। तब तो हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में 84 लाख के हम जोनी में घूमते हैं, इससे हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो वो हमारा चॉइस है कि हम कैसे रहना चाहिए। आप क्लीन रहना चाहते तो क्लीन रोक सकते हैं, हम क्लीन नहीं रहना चाहते तो बहुत लोग फुटपाथ में घूमते हैं, ऐसे नहाते नहीं, कुछ नहीं, तो उसका मन मलिन होता है। इस तरह आप खुद चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि आप भगवान ने दिए है क्वालिटी, अपने गुड क्वालिटी दी है, गुड क्वालिटी को आप व्यवहार कर सकते हैं। और जैसे अर्जुन पूछते हैं कि मैं कभी कभी पाप कर्म में नहीं करने से भी पाप कर्म में जैसे कोई बाहर से फोर्स करता है तो वो तो गुण के कारण ही होता है। जो फोर्स होता है कि हम ना चाहते हुए भी वो कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते हैं, तो वो तो ये तो गुण के कारण हो रहा है। जरूर गुण के कारण ही होता है। तो यहाँ पे लेकिन उसकी यहाँ पे जो अर्जुन का बात है कि ये तो भगवत प्रकाश करने के लिए भगवान की इच्छा से शोक किए थे। हम्म। ठीक है, आपको यदि शोक करना है तो भगवान के लिए जो संबंधी, भगवान के संबंधी कोई है, तो उसको जैसे प्रभुपाद में भी कई जगह में बताते हैं, जैसे कोई मठ मंदिर में कोई व्यक्ति आए, फाइटिंग करने चाहता है, मंदिर को अनिष्ट करने चाहता है, तो वहां पे आप फाइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति सुरक्षित करने के लिए फाइटिंग कर सकते हैं। इस तरह आपको मन की अच्छी कर्म करना है, आपको तो भौतिक जगत को त्याग कर कर फाइटिंग कर कर उसको आप निकल कर आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। दंडोत प्रभु, वेरी गुड। धन्यवाद। Thank you, Radha Govind Prabhuji, for that question. And thank you, Mahabahu Prabhu, for the answer. Yes, Akrul Prabhuji, please.
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो गुण हमें नियंत्रित करते हैं या हम गुणों को नियंत्रित करते हैं? और स्वभाव स्वभाव गुण से बनते हैं या हमसे बनते हैं, या कैसे बनते हैं? स्वभाव देखो, जैसे भगवान की क्वालिटी रहे तो स्वभाव तो है ही है, क्योंकि भगवान की सृष्टि है। हाँ, तो बात यह है कि जब हमारा स्वभाव गलत है, हमको समझ में आ रहा है, तो हमको खुद ही कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हम भगवान की सेवा में रखते हैं तो जो अपने स्वभाव होते हैं, भगवत की सेवा होते हैं, उसका भगवत की सेवा के कारण वो ऑटोमेटिक जो खराब गुण है वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप बोल नहीं सकते जे गुण के कारण हम हो रहे, अरे हमारे कारण गुण हो रहे, ऐसे नहीं है। क्योंकि जब भगवत सेवा हम करते हैं वो अच्छा क्वालिटी आ जाता है। जैसे हम खराब क्वालिटी करते हैं, खराब कर्म करते हैं, पाप कर्म, तो हमारा मन मलिन हो जाता है, क्योंकि हम गलत है। हम गलत के कारण हमारा मन मलिन होता है। हम सही होंगे तो हमारा मन मलिन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल सकते जी पहले गुण है और पहले ये है। तो ये जब भगवत सेवा में लगता है, सारे सब स्वभाव भी चेंज हो जाता है। जैसे शास्त्र में कई सारे बताया गया है कि चोर भी है, एक स्टोरी है छोटा सा, कि जब चोर चोरी करते हैं और साधु की प्रवेश में आता है, उसी का चोरी गुण होता है। जब साधु के पास आ जाता है, उसका गुण साधु का स्वभाव होता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? तो पहले गुण है ना पहले स्वभाव, ऐसा कुछ नहीं है। जब साधु संग करेंगे ऑटोमेटिक वो खराब गुण चले जाएगा और आपके साथ गुण आएगा। हरि बोला करो दो। हाँ प्रभु जी, वही चीज, जैसे किसी के पास कार है, बिल्डिंग है, वो होते, जब वो नहीं था उसका स्वभाव अलग था, जब आ गया उसका स्वभाव बदल गया। तो तो यहाँ पे जो जो गुण है अहंकार, अहंकार गुण की काम कर रहा है, अहम भाव आ रहा है। उसका जो दूसरे गुण है, चौसठी गुण में 50 गुण जीव में है, 50 गुण के अंदर अहंकार भी है। ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं और सूक्ष्म रूप में रहने के कारण उसका क्या होता है, जब संपत्ति आ जाते है उसका तो अहंकार बढ़ जाता है। तो इसी में यदि हम भगवत सेवा करेंगे, उसका अहंकार सब जितना वस्तु है तो भगवत की सेवा में रख जाता है। यदि भगवत सेवा में लगेगा, उसका जो अहंकार है, मेरे संपत्ति है, मेरा कार है, ये सब साधारण हो जाएगा। तो उसी में और अहंकार रुकेगा नहीं। तो गुणों को आश्रय करने का चयन का जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ना, हम जिम्मेदार है ना, हम गुणों का आश्रय एक करने चीज के लिए। देखिए, गुण की हमारे जिम्मेदारी नहीं बोल सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमारा गुण जो है, ये प्रकृति जो नियम बनाया है, भगवान ने जो नियम बनाया है, जिस गुण की इसी की व्यवहार करना, ठीक है। हाँ, वही तो जो चयन है। गुण है, हाँ, जो गुण है इसमें चॉइस नहीं है। आपको तो 50 गुण है आपके पास, इसको व्यवहार करना सत मार्ग में। जब सत मार्ग में अर्थात भगवत मार्ग में व्यवहार करोगे, तब आपको कुछ जो अहंकार होता है, अहंकार को भी व्यवहार कर सकते हैं। जो भगवत की आराधना में गर्व है, हमें भगवान है, हम भगवान की सेवा करेंगे, हम भगवान के भक्त है, जो भी काज करेंगे भगवत की सेवा करेंगे, ये हम बार आ सकता है। भगवान के लिए अहंकार कर सकते हैं, लेकिन अपने के लिए नहीं है। यहाँ पे एक प्रभेद है, जो खुद अपने इंद्र तृप्ति करने के अहंकार, और दूसरे अहंकार है भगवत सेवा के लिए अहंकार। भगवत संबंधी कोई चीज कर रहे हैं तो उसी के लिए कुछ करना है, उसी के लिए अहंकार। जैसे गाड़ी घोड़ा रख रहे, ये भगवत सेवा के लिए रख रहे, भगवान की सेवा के लिए रख रहे, इसमें कोई फर्क नहीं है। प्रभुपाद जो विदेश में गए थे,
प्रभुपाद को बता रहे तुम आप सन्यासी हो, अब क्यों जहाज में घूम रहे? तो प्रभुपाद बोले ये टीन चादर की जहाज है, हम तो सोने के जहाज में घूमना चाहिए, क्योंकि भगवान की हम भक्त है, भगवान की सहस्र लक्ष्मी विराजमान, लक्ष्मी के अभाव नहीं है, हम तो सोने, गलत हो गया कि हम टीने के जहाज में घूम रहे। तो इस तरह जहाज हो कोई भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भगवत की सेवा में लगा सकते। जो आपकी अहंकार जो है वो अहंकार की व्यवहार कर सकते हैं। चयन तो फिर भी हमारे ऊपर ही आ रहा है ना। जैसे हम सिनेमा हॉल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, प्रसाद खाएंगे या बाहर का जंक फूड खाएंगे, ये चयन तो फिर भी हमारे ऊपर ही आ जाता है ना। वो तो स्वाधीनता गुण से, हम तो बताए उससे पहले ही बताते हैं जिस गुण का, जी जो आपको भगवान ने स्वाधीनता गुण दिए उसको चॉइस करना है। लेकिन यहाँ पे आपका जो अहंकार की बात बोल रहे, अहंकार बात अलग है, समझिए ना। तो हम गुणों का आश्रय की कोशिश करते हैं, हम भोग की इच्छा रखते हैं, तो यही अर्थ हुआ ना उसका। इसकी फलासक्त निबद्धते, उसकी वजह से हम गुणों से अधीन हो जाते हैं। हम गुणों को आश्रय करने की कोशिश करते हैं, फिर गुण हमको पकड़ लेता है, यही अर्थ हुआ ना उसका। गुण जब पकड़ लेता, कब पकड़ता है? अब जब कुछ करते हैं तब पकड़ता है ना। हमको कब पता चलता है? हम जब खराब कर्म करते हैं तब पता चलता है, राइट। हम सही कर्म करने से हमको पता चलता है। हम आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, जे आप खराब गुण बोलकर कब समझ में आता है? जब गलत करते तब समझ में आता है, राइट। बोलो अक्रोध। आप गुण, मेरा म्यूट हो गया था। हाँ, ये तो है, खराब काम करने से आपको पता चल सकता है, पता नहीं भी, ये गुण के हिसाब से पता चलता है। हाँ, लेकिन गुण के खराब हिसाब कर्म से से तो नहीं, पता चल जाता है। ना ये अलड़ी है अध्याय, हाँ वहां पे गुण है, लेकिन हमको कब समझ में आ रहा है? जब हमको खराब कर्म कर रहा तब समझ में आ रहा है। इसलिए हर जीव के पास हर गुण है, अलड़ी है, लेकिन हमको समझ में जब आता है, हम जब गलत करते तब समझ में आता है, हम सही करने से समझ में नहीं आएगा। बट ये जरूरी नहीं है, कोई सत्वगुणी में रहे तब भी उसको ये भान आ सकता है। एक आध्यात्मिक को ये पता भी नहीं चलता। इस प्रकार हम कोई अच्छा कर्म नहीं सुने, करते, अच्छा अधर्मीय कर्म जो पापी होता है, एक 1 मिनट, जो पापी होता है, जैसे आपकी, हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, जे आप जल के अंदर बुड़े हुए हैं, आपकी जल की अनुभव होता है, आप हाँ, जल में नहीं है, स्थल भाव में है। जैसे बारिश होता है, स्थल भाग में जारी बारिश होने से आपको जल की अनुभव होता है कि नहीं? होते हैं। तो कहाँ पे कौन सा आपकी फर्क पड़ा? अब जल में है, अंदर में आप है, ठीक है, अंदर घुसे है, लेकिन जल की अनुभव नहीं है, जो जल की हमारे शरीर में लग रहे, क्योंकि वहां पे जल ही है ना, जल के अंदर है, आप जानते हो जो हम जल के अंदर है। लेकिन जब स्थल भाग में है, बारिश होता है, तुरंत ही बोलते हैं बारिश हो गया, जल आ गया, तो जल के अनुभव होता है। ऐसे जब गुण है, उनका गुण का स्वभाव है सात्विक, तब हम गलत में आते हैं, तब हमको प्रभाव, हम बता दे कि जी हम नहीं, कुछ गलत है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हरे कृष्ण। हैं? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण, प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्लास अच्छा था और प्रश्नोत्तर और भी अच्छा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Time is already over, so we can conclude for the day. जय श्री श्रीपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वंदगी, श्री गुरुदेव प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। Mahabahu Prabhu ki. Hare Krishna. Thank you Nandal for joining. See you all in tomorrow's class.